Assalamualaikum everyone. This is Aisha Yunus here from the CSS Writing Club. Today I'm going to give you a very unique way of looking at essay where you would not find it elsewhere. Now the reason I'm giving you this is because this is what I have researched all those years and I have actually implemented it, and I have found that this is the basic key that has been able, this enabled a lot of aspirants to actually clear their exams. अब उसका रीज़न, what is the reason behind this is because इनमें से कुछ चीज़ें might look controversial to you, and it might go against what most of the people say, but this is the tried and tested formula, and trust me, if you go through this you would understand how you will be able to write the CSS exam. Now there are some areas, okay, this methodology has some areas that you need to focus on, and if you work upon those areas you will be able to write a very well written, and according to the FPSC's examiner's point of view, you need to focus on what the FPSC's examiner for the CSS essay requires, and if you look into it then you would know how these areas will focus will work upon that. Okay, now let's start with the areas. सबसे पहले the basic चीज़ जो आपको सीखनी है, देखें ऐसे लिखना है, आपने अंग्रेज़ी में लिखना है तो अंग्रेज़ी की basic grammar और ये सब चीज़ें तो करके आनी ही है. This is the first and the foremost step. If you're weak in that area, then trust me, you won't be able to go, you'll not be able to pass, because a simple grammar mistake is such a put off for an examiner that वो कोई एक छोटी सी गलती देख के इतना उसका मूड खराब हो जाएगा ना, that is gonna say I'm not gonna read the rest of the script. So you need to basically work upon that. Okay, उसके लिए आप ये जो हमारा 7th स्टेप है टाइम राइटिंग प्रैक्टिस, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स निकलेंगी और उतना ही जो सा है आपका ऐसे एक बेहतर लिखा जा सकता है. Now that is something else, but that is the first step. Okay, and we have covered that part as well, but basic से grammar सिखाना is not what we are going to offer. Okay, we are going to put some videos on YouTube for your help. You can go look into that. But right now, what I'm going to tell you is what I have actually, researched and found the keys that can help you pass any essay, and especially the CSS essay, because it's a different type of essay. It's not an academic essay. एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो CSS का essay है, it is not like any other essay. It is a very different kind of essay, and उसकी requirement, मज़े की बात है, FPSC आपको बताता है, वो चीख के आपको बताता है कि भाई हमें ये आपके essay में चाहिए है. And if you're not gonna put it in it because academic writing ऐसे नहीं होती, या because एकेडमिकली आप एसेज ऐसे नहीं लिखते और ऐसे के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उस टाइप के अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है, देन दैट्स अप टू यू. ठीक है, आपने उस रूट पे जाना है, दैट्स योर ओन चॉइस. बट आई एम गोना टेल यू सेफ वे इन विच आप इंश्योर कर सकें कि आपका ऐसे पास होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की ग्रामर की. आई मिस्ड आउट दैट पार्ट बट आई डिड नॉट पुट इट इनसाइड बिकॉज आई एम नॉट गोना गिव यू लेक्चर्स ऑन ग्रामर. एज लाइक जब मैं आपको ये आपको कोर्स कराऊंगी CWC वाला, इसमें मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाऊंगी. उसकी रीज़न ये है, ऑल्दो जब आपकी चेकिंग होगी ऑब्वियसली उसमें ग्रामर चेक होती है और उसमें कुछ की एरिया स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, जो भी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज वो उसमें चेक होते हैं. बट इफ़ आई से कि मैं उस पर लेक्चर दूंगी कि ये क्या होता है क्यों होता है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोना डू, बिकॉज ये थोड़ा सा होमवर्क है जो आपको करके आना पड़ेगा. लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पैराग्राफ स्ट्रक्चर. एक तो पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझना कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता क्या है इसमें. अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक, आप कह लें कि छोटा पार्ट है और ऐसे का भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है. बट वी आर गोइंग टू गो ब्रिक बाय ब्रिक. ओके, वी आर गोइंग टू मेक आवर वॉल ऑफ एसे ब्रिक बाय ब्रिक, और जो एक पैराग्राफ होता है वो एक ब्रिक होती है. ठीक है, टू कंप्लीट द वॉल ऑफ योर होल CSS essay. तो पैराग्राफ स्ट्रक्चर सबसे पहले, ये सारे लेक्चर्स हैं, बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर पैराग्राफ स्ट्रक्चर समझाया जाएगा. और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग. देखिए, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी
कि कैसे आपके सिलेबस में आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आई विल लेट यू नो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट आर द की एरियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द की गाइस। ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को समझें, उसको प्रैक्टिस करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ढेर सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो आप यूज़ करें एंड ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म एवरीथिंग। और मज़े की बात, मैं आपको जो यूज़ ऑफ एआई है इन योर स्टडी प्रोसेस, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, the world is changing, okay, so are the ways of educating ourselves, ठीक है? अब पहले गूगल यूज होता था भाई, अब कौन गूगल इस्तेमाल करता है? वी यूज एआई, ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स टू गेट द बेस्ट राइट रिटन आउटपुट, ओके? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम एआई यूज करेंगे, उसके बाद बहुत मजे की बात, हम थीम्स प्रिपेयर करेंगे। देयर आर वेरियस थीम्स, ठीक है? बेसिक कौन सी होती है? सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक होता है। और मज़े की बात यह है कि हर थीम का अपना एक जार्गन सेट होता है, उनके कुछ की फ्रेजेस होते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि आप इतनी रीडिंग कर चुके हैं कि आपको सारी की फ्रेजेस का पता है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक तो आपके पास टाइम नहीं होता है, देन आप इतने वेल रेड नहीं होते, हैबिट्स नहीं होती हैं रीडिंग की, और फिर आपका माइंड को उन फ्रेजेस को रिटेन करना और उसको ऑटोमेटिकली वाइल रीडिंग, ये प्रोसेस से गो थ्रू होना, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होना, ये डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? बट हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, सो व्हाट वी डू इज़ वी लुक फॉर द शॉर्टकट्स। सो अब इसमें शॉर्टकट क्या है कि आप जब भी थीम प्रिपेयर करेंगे, आपने उनके की फ्रेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल लें, आप जैसे भी बुक्स में से निकाल लें, जहाँ से भी आप निकाल सकते आप निकालें और उनको प्रिपेयर करें। वो थीम्स, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इवन के पूरे पूरे पैराग्राफ्स याद करें। यू हैव टू मेमोराइज देम। कुछ अच्छे पैराग्राफ्स, उनको राइट लिखने का तरीका, यू हैव टू रिमेंबर देम। मेमोराइज करें, मेमोराइज करें, जितना मेमोराइज कर करके लिखेंगे, आपका ऐसे आप बेसिकली पहले ही तैयार करके जाएंगे अपने एग्जाम में बैठने से पहले। अच्छा, राइटिंग मेथोडोलॉजी है जिसमें आप कौन सा है सब टॉपिक को देखते हैं, उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके वेरिएबल्स निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से आपने कितने उसको किस पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके बाद किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारा उसका पार्ट है, ठीक है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, थीम्स, की फ्रेजेस, फिर ये चीज़ें आपने उसमें पुट करनी है। देखिए, ये बन रहा है आपका कंटेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, थीम्स, फ्रेजेस, ये बन रहा है आपका कंटेंट। स्ट्रक्चर हमने पहले सीख लिया, ढांचा, उसके बाद हमने कंटेंट निकाल लिया। अब हमने उस ढांचे के अंदर वो कंटेंट को फिट इन करना है, वो भी हमने सीखना है, वो हम राइटिंग मेथोडोलॉजी से सीखते हैं। देखिए, कोई पेंटिंग बनानी होती है ना, तो पहले आप ब्रशेस आप अपने कलेक्ट करते हैं, बेस्ट टाइप ऑफ ब्रशेस, फिर पेंट्स अच्छी क्वालिटी के आप इकट्ठे करते हैं, आप कैनवसेस ढूंढते हैं कि यार कौन सा कैनवस बेहतर होगा। दिस इज़ आवर होमवर्क। जब आप ये चीज़ें सारी पूरी कर लेते हैं, फिर आप पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। दैट्स हाउ यू गो अबाउट CSS essay, ठीक है? आप कहें कि जी आप एकदम जो सा एग्जाम में बैठे 3 घंटे के एग्जाम में आपने फटाफट सब लिख लेना है और बस कमाल छा गए आप, तो भी ऐसा नहीं होता। आपको बैक एंड पे पहले उसका होमवर्क करना है। पहले तो हाई क्वालिटी का कंटेंट, हाई क्वालिटी का स्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी की आपके पास जो है लिखने का तरीका, फिर उसको उसके अंदर फिल अप कैसे करना है, थीम्स प्रिपेयर हो, हर चीज़ आपके पास रेडी होगी, फिर आपको पता हो कि अच्छा लिखना कैसे है उसको, वो हम राइटिंग मेथोडोलॉजी में सीखेंगे, ठीक है? ये इतना टेक्निकल है नहीं जितना आपको लग रहा है, ये बहुत आसान है, हर चीज़ बहुत आसान है। मुझ जैसा बंदा कर सकता है। आई कैन से कि आई कैन गारंटी कोई भी बंदा इस तरीके के साथ अगर CSS ऐसे को लेके चलता है और इस ट्रेनिंग के साथ लेके चलता है जो कि CWC प्रोवाइड कर रहा है, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू, और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसे पास किया है। वो हो सकता है कोई बहुत निकम्मा स्टूडेंट भी था, लेकिन उसका ऐसे पास हुआ है, बाकी किसी सब्जेक्ट में रह गया या नहीं रह गया, वो लेकिन ऐसे हमेशा पास हुआ है। उसका रीज़न यही है कि हम उनका जो बैकपैक है उसको रेडी करते हैं, फिर उनको इस टाइम राइटिंग प्रैक्टिस से गुजारते हैं ताकि वो इनेबल हो कि वो उस चीज़ को अपने उसको बेसिकली मटीरियलाइज कर सके अपने 3 घंटे के एग्जाम के अंदर, ओके? और एक और चीज़, हमने टाइप्स ऑफ पैराग्राफ सीखने हैं। वी आर नॉट गोना लर्न टाइप्स ऑफ ऐसे, mark my words, not types of essay, we are going to learn types of paragraphs because आपका examiner different types of discourses मांगता है, वो अभी हम देखेंगे
कैसे जोन सा है आपके एसे के सिलेबस में लिखा है। इवन अभी मैंने सामने CSS एसे 2025 का पेपर रखा है, अगर इसको आप पढ़ें, जो नोट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए जो नोट है वो एग्जामिनर की तरफ से है, और जो नोट है उसके अंदर वो आपको चीख चीख के बता रहा है कि भाई एसे लिखने से पहले मुझे पढ़ लो और देख लो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। ही सेइंग कि आप प्रिपेयर करें एक आउटलाइन, ठीक है, और उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव एसे लिखें 2500 to 3000 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको 2 ऐसे लिखने को भी कह सकता है। देन यही आप सोच के बैठे हैं कि भाई एक ही आना है, क्योंकि हमेशा से ऐसे होता रहा है, तो भाई आप आजकल रिफॉर्म्स आ रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये रिफॉर्म्स इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए जो इस सब्जेक्ट के लिए और इस माइंडसेट को बेसिकली जो आपको अलाउ करता है ये एग्ज़ाम में बैठना और उसको पास करना, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और वो एग्ज़ाम किस मेथड से ले रहे हैं, क्लस्टर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। आप खुद को तो तैयार करें अपने आप को, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें वो कहता है मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वो कह रहा है कि मुझे अपने एसे के अंदर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स भी दो, मुझे आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ्स भी दो, मुझे डिस्क्रिप्शन भी दो, मुझे नरेशन भी दो। What is narration? Narration is a story writing. एक स्टोरी राइटिंग के बेस पे, नरेशन के बेस पे पैराग्राफ लिख के दो। क्या आपने कभी लिखा है? नहीं लिखा। दैट इज द रीजन यू फेल इट। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हो, रेलेवेंस हो, क्लैरिटी हो। जब आपके पास सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की ऊपर, स्ट्रक्चर आपको पता हो, फिर उसके बाद जो आप बात कर रहे हो वो रेलिवेंट हो, और वो रेलिवेंट तभी होगी कि जब आपको उस घर के कमरे का पता होगा कि मैंने किस कमरे में जाना है, ठीक है। और वो घर हमने तैयार करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। वो थीम्स, डिफरेंट कमरे होंगे जिनको हमने तैयार करना है, और उन कमरों के अंदर हमारे की फ्रेजेस पड़े होंगे, और हमने उन कमरों से वो की फ्रेजेस निकाल के अपनी बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक हो गया। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट हाउस। इसमें हमारे रूम्स होंगे, जिसमें हमारे थीम्स होंगे, उन रूम्स के अंदर हमारे पास फ्रेजेस होंगे, ठीक है। ये एक इरादा चीज़ हो गई। फिर हम अपने हर ऐसे के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ भी लिखेंगे। हम उसमें नरेशन भी लिखेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। हम पहले सीखेंगे ना कि कैसे लिखते हैं, कैसे चेंज होता है। तो जब इसके अंदर स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, राइटिंग स्टाइल के अंदर होता स्ट्रक्चर जो बेसिक है ना पैराग्राफ का, वो एक ही होता है, बट उसके अंदर आप कॉज लिख रहे हैं, इफेक्ट लिख रहे हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट वाला बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपोजिटरी हो जाता है। ये भी पूरा लेक्चर सीरीज होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट, ओके। फिर वो कहता है कि आपने क्वेश्चन नंबर अपने आंसर बुक में इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको लगेगा ये क्या बात है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 नंबर का ऐसे कर रहे हैं और ऐसे आपने रिफॉरेस्टेशन पे लिख दिया है, तो आपको नहीं पता, किसी भी एग्जामिनर का दिमाग फिरा हो वो कि यार ये टॉपिक तो वो है ही नहीं जो हमने पूछा है, ये देखें क्वेश्चन में क्या है और उसने क्या लिखा है, चलो जी फेल। ऐसी ऐसी बातों पे भी नंबर कटते हैं, फेल होते हैं लोग, ओके। सो यू नीड टू बी केयरफुल। नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स। अब ये हो कि आपने सोचा कि चले मैं कंक्लूजन पहले लिख लेता हूँ, तो या कंक्लूजन में आगे जाके लिख देता हूँ और फिर मैं भरता रहूँगा, और मज़े की बात कि आपके पास टाइम ही ना बचे, बीच में पेजेस छोड़ दें, उसको लगे आपने कंक्लूजन ही नहीं लिखा, चलो जी फेल। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू आप। और ये टाइम राइटिंग प्रैक्टिस से आता है। जब आप ये सब अपनी बैकपैक तैयार करने के बाद जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि आप कितने टाइम में क्या लिख सकते हैं, और आपको पता होगा 10 मिनट है तो बस मैं इतना ही लिख सकता हूँ। उसी वक्त आपने वहाँ पे किया, और फिर उसके बाद आपने उसी वक्त आपने अपना जो जितना भी पैराग्राफ राइटिंग रह गया है वो लिखा। आउटलाइन में उतने ही आपने पैराग्राफ के पॉइंट्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिख देना, ठीक है, उतना ही लिखना है। एंड पे हम आउटलाइन लिखते हैं हमेशा, बिकॉज हमें एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप बहुत तैयार हो जाते हैं ना, फिर आपको पता होता है कि इतने टाइम में आपने इतने पैराग्राफ्स लिख लेने हैं। बट फिर भी मैं एडवाइस यही करती हूँ कि आप हमेशा अपनी आउटलाइन एंड पे लिखें, जगह छोड़ दें। आपको पता होता है कि मेरे 1-1.5 पेज पे, 2 पेजेस पे, 2.5 पेजेस पे आ जानी है आउटलाइन। उसके बाद से आप थर्ड से पेज से आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए भी मैं जगह छुपा देती हूँ, बिकॉज इंट्रोडक्शन भी मैं एंड पे लिख पाती हूँ। फिर उसके बाद अपना जो भी कंसेप्चुलाइजेशन का पैराग्राफ है, फिर आगे जो पैराग्राफ्स हैं वो करके कंक्लूजन लिख के, फिर उसके बाद वापस आते हैं और इंट्रोडक्शन जो आपने तैयार किया होता है माइंड में, आप उसको तैयार करते, उसको लिखते हैं। फिर आउटलाइन लिखते हैं, जितने आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग वही वही पॉइंट और उतने ही हेडिंग्स और कंक्लूजन, एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक हो गया। सो दिस इज आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट्स, और हर चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगी, आगे मैं बताऊंगी एसे का सिलेबस,
एग्जामिनर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू मोर इन टू दैट। ओके, सो स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। एंड our doors are always open। ठीक है, you need our help, our guidance, we're always there for you। okay, thank you so much, take care, Allah Hafiz, assalamu alaikum।